So dear students, in the continuation of the previous topic, that is nucleus, we are going to study about the another component of the nucleus, that is a chromosome, which I have just shown the picture on your screen. But before I just go in the details of the chromosome, we have to once again take a quick look on the structure of the nucleus as a whole. So here is again the structure of the chromosome. As you can see that these are the double membrane, nuclear membrane, you can see, and in these are the nuclear pores, and this is the nucleolus, and these are the chromatin threads like structure. So we are going to study about the nuclear chromatin, you can say. We are going to study about the chromatin. So now we can see the structure in the detail. This is the structure of the chromosomes. So why we are just showing you the structure like this? Because here you can see that these fine thread like structure that are called chromatin. So why we call chromatin, and what is the difference between the chromosome and chromatins? Usually students are very much get confused in these two terms कि chromatin क्या है और chromosome क्या है. तो chromatin and chromosomes are the same thing, but ये डिफरेंट स्टेजेस में जब पाए जाते हैं तो इनको हम अलग अलग से नाम दे देते हैं. फॉर एग्जांपल, अभी हमने सेल डिवीजन नहीं पढ़ा है. व्हेन वी स्टडी द अबाउट द सेल डिवीजन, तो यू गेट टू नो दैट देयर आर वेरियस स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन. ठीक है, जब सेल डिवाइड होती है तो उसके बहुत सारे स्टेजेस आते हैं. द नेम इज़ लाइक मेटाफेज, एनाफेज. तो अगर हम बिगनिंग से स्टार्ट करें तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये इंटरफेज. तो दीज आर द स्टेप्स. तो जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें जो उनकी बॉडी में जो चेंज आता है क्रोमोसोम्स की, वो स्टेप वाइज चेंज आता है. एंड दीज स्टेप वाइज चेंजेस को ऑब्जर्व करने के लिए वी हैव डिवाइडेड इनटू द वेरियस काइंड्स ऑफ फेजेस. जैसे मैं कह रही हूँ आपको, interphase, metaphase, telophase. So these kinds of phases, so where we can see the various changes which occurs into the chromosomes during the cell division. तो अगर जब हम chromatin बोलते हैं बच्चों, तो chromatin का मतलब होता है these thread like structures. ठीक है, these are made up of DNA, no doubt. ये DNA भी इन्हीं को कहोगे, chromatin भी इन्हीं को कहोगे, chromosomes भी इन्हीं को कहोगे. But what is the difference between two? So that's why I am just going to give you an exact idea about it. So here you just think about that these are the uncondensed part of the. Uncondensed means these are uncoiled part, these are the extended part. खुले खुले से पड़े हुए fine thread like structures and they are openly scattered in the nucleoplasm, है ना, you can see. तो इसको हम अनकंडेंस्ड भी बोल सकते हैं. तो अनकंडेंस्ड मीन्स जो पास पास ना हो, दूर दूर फैले हुए एक्सटेंडेड पार्ट हैं. तो दीज आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन के बने ही होते हैं. न्यूक्लियोप्रोटीन के आपको पता ही, क्रोमोसोम्स भी. तो दीज आर द अनकंडेंस्ड पार्ट ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, एंड दीज आर मोस्टली यू कैन ऑब्जर्व इन द इंटरफेज स्टेज. व्हाट इज इंटरफेज स्टेज? जैसे कि मैं भी आपको बोल रही हूँ कि दीज वेरियस स्टेजेस आर मेड अप ऑफ during the cell just I take the color. On the various stages of cell division, we can see these various kinds of stages. Now I get the color. Interphase, just a moment. Sometime coordination is not good between me and the pens, so that's why. So interphase stage I am talking about. So these chromatin is observed in the interphase stage. Interphase stage is a stage of the cell division where chromosomes are in the resting phase. वो कुछ नहीं कर रहे होते, कुछ डिवीजन वगैरह कुछ नहीं, वो आराम से पड़े हुए हैं. तो इंटरफेज स्टेज के ये क्रोमोसोम, अगर इंटरफेज स्टेज में आप ऑब्जर्व करोगे तो ये आपको ऐसे ही दिखाई पड़ेंगे, थ्रेड लाइक पड़े हुए. तो क्या आप कह सकते हो क्रोमेटिन इज ऑब्जर्व इन द इंटरफेज स्टेज. एंड काम क्या होता है जब ये ऐसे पड़े हुए हैं पतले पतले से? तो बेसिकली दे कंट्रोल सम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. जो भी काम चल रहा होता है सेल के अंदर, उनको थोड़ा सा कंट्रोल करने का काम करते हैं. देन नाउ व्हाट इज़ क्रोमोसोम देन? तो क्रोमोसोम्स के लिए अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ स्ट्रक्चर सो दैट, सपोज जैसे जब आपने क्रोमोसोम के लिए आपने ये कुछ ऐसी सी इमेज बना रखी है अपने माइंड में कि दिस इज़ द क्रोमोसोम्स, दीज आर टू सिस्टर क्रोमेटिड्स 1 and 2, दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स, एंड देयर इज़ अ स्ट्रक्चर नोन एज सेंट्रोमियर, एंड देयर इज़ ऑलवेज अ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड काइनेटोकोर. ठीक है, मैं सारा कुछ आपको इसमें बता रही हूँ. तो दीज आर द काइनेटोकोर, दीज आर द सेंट्रोमियर, दीज आर द सिस्टर क्रोमेटिड्स. तो ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है. तो काफ़ी आपको थिक दिख रहा है ना, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दिख रहा है. तो ये इंटरफेज में तो वो वाला ठीक था, ये वाले लूज लूज जो पड़े थे, दैट इज़ ओके. बट व्हेन सेल डिवीजन प्रोसीड्स, जब सेल डिवीजन आगे चलता है, देन व्हाट विल हैपन? तो दीज स्ट्रक्चर्स, दीज मीन्स दीज chromatin structures, these chromatin changes into a more firm structure, or you can say they can see in more condensed form, more clear. आपको दिखने लगता है. अब ये बड़े बड़े दिख रहे हैं ना आपको क्रोमोसोम्स, तो इट इज़ ईजी
फॉर यू टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर। सपोज ये अब ऐसे दिख रहे हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है ना, बजाय कि वो इतने थिन स्ट्रेट जैसे दिख रहे थे। तो दीज क्रोमोसोम आर कंडेंस पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम। कंडेंस पार्ट का मतलब वही हो गया कि दे लुक वेरी स्ट्रक्चर्ड, मतलब बहुत बने हुए, अच्छी बॉडी, ठीक सी बॉडी इनकी आपको नज़र आ रही बनी हुई क्रोमोसोम्स की। एंड मोस्टली ये मेटाफेज स्टेज में, क्योंकि मेटाफेज स्टेज आप याद रखो हमेशा, मेटाफेज स्टेज इज़ द स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन वेयर क्रोमोसोम्स आर सीन वेरी क्लियरली एंड इन वेरी मच ऑफ शेप। तो बहुत अच्छे से दिखते हैं मेटाफेज स्टेज में। तो ये मेटाफेज क्रोमोसोम ऐसे ही दिखेगा आपको बड़ा सा अच्छा सा। जब भी अगर क्रोमोसोम स्टडी करना होता है तो मेटाफेज स्टेज की जाती है, क्योंकि वो क्लियरली दिख रहे होते हैं। एंड अब ये क्योंकि क्रोमोसोम बन गया, अब तो इसको आप क्रोमोसोम कह सकते हो ना, ये लुक लाइक क्रोमोसोम। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम? यू ऑल नो वेरी वेल द दिस फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम इज़ टू कैरी द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब वन जनरेशन को आप पेरेंट जनरेशन टू डॉटर जनरेशन भी बोल सकते हो, ऑफ स्प्रिंग भी बोल सकते हो। तो नाउ इट इज़ क्लियर टू यू, आई होप सो, कि chromatin and chromosome are the same thing, but during the cell division or various stages of the cell division they are seen in different structure or different shape। तो इसलिए उसको हम क्रोमेटिन या क्रोमोसोम्स जो है हम बोलते हैं। तो अब इसी के बारे में हमको पढ़ना है बेसिकली। जो हम अभी चीज़ें देख रहे हैं इसके अंदर, दैट मीन्स दिस इज़ द क्रोमेटिन एंड अंदर भरा हुआ सारा सा न्यूक्लियोप्लाज्म। तो देर आर टू मोर डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, लाइक दिस वन एंड दिस वन। आप देख रहे हो थोड़ा सा डार्कली स्टेन्ड है ना, थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहा है ये। तो दिस इज़ कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन। तो दिस इज़ द थिक रीजन ऑफ द क्रोमेटिन। क्योंकि आपको होगा कि इसमें क्या नई चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो क्रोमेटिन तो सारे ही है, ओके, ये ऑल दीज आर जो थ्रेड पड़े हैं पतले पतले, दीज आर द क्रोमेटिन, बट स्टिल दे हैव ऑल्सो देयर इज सम डिफ्रेंशिएशन इन बिटवीन टू। तो दीज आर, इफ़ आई रिमूव द इंक यू कैन नाउ इजिली सी दैट दीज आर द थिक रीजन्स। तो उन्होंने ज़्यादा स्टेन लिया हुआ है, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर क्रोमेटिन है, तो जब आप स्टेन करोगे तो दे विल टेक मोर स्टेन ना। तो दैट्स वाई दे आर डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर्ड। एंड हियर डीएनए इज ऑल्सो मोर, है ना, बहुत ज़्यादा डीएनए तभी तो ये डार्क स्टेन लिया है। ज़्यादा डीएनए तो ज़्यादा डार्क डार्क यहाँ पर हो गया। एंड दे आर वेरी मच इनएक्टिव, मीन्स ये ट्रांसक्रिप्शन वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करते अच्छी तरीके से। भी ट्रांसक्रिप्शन क्या है मैं आगे आपको बताऊंगी। तो दे कांट डू द ट्रांसक्रिप्शन वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये चलो बता ही देती हूँ। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनना। तो ये आरएनए नहीं बनाते ज़्यादा अच्छी तरीके से, और रेप्लिकेट भी लेट करते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए टू डीएनए फॉर्मेशन, तो वो भी रेप्लिकेशन भी इनका बहुत स्लो होता है। अभी याद रखो, आगे अभी आपको बता रही हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन ये करते नहीं और रेप्लिकेशन भी बहुत लेट करते हैं। तो दिस इज़ नॉट गुड थिंग ना। अब नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो दीज आर द थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो भी ये बाकी के सारे पड़े हुए, दैट इज़ कॉल्ड यू क्रोमेटिन। तो जब ये काम करते हैं तो वी कॉल देम ट्रू क्रोमेटिन एंड इट इज़ अ वेरी थिन स्ट्रक्चर। अब थिन है तो दे टेक वेरी लेस स्टेन। तो ये बहुत लाइट स्टेंड होते हैं, बहुत स्टेन मीन्स कलर करके देखोगे आप, है ना। ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, पर अभी मैं बता रही हूँ साथ साथ कि व्हेन एवर यू स्टडी द डीएनए और जेनेटिक मटेरियल, you have to stain them, you have to color them so that you can see it clearly, and we stain them with a basic stain that is called fulgens stain। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आपके लिए नाम, FEULGEN, फ्यूलजेन स्टेन। दिस इज़ अ नेम ऑफ कलर। इसमें हम कलर करके डीएनए को देखते हैं सो दैट वी कैन सी इट क्लियरली। तो फ्यूलजेन स्टेन जो कि बेसिक स्टेन है, उससे कलर करके आप देखते हो। एंड फर्स्ट फ्लेमिंग ने इसको कलर करके इसको देखा था, तो जब कलर किया था ना तभी उनको ये दो पार्ट्स एक्चुअली दिखाई दिए थे कि कुछ तो डार्क स्टेंड हो गए बहुत ये जैसे, और कुछ एक लाइट स्टेंड हो गए। तो जो डार्कली स्टेंड हो गए वे कॉल्ड देम हेट्रोक्रोमेटिन। एंड हेट्रोक्रोमेटिन इज़ नॉट वेरी मच एक्टिव, क्योंकि ना ट्रांसक्रिप्शन करता है ना वो रेप्लिकेशन भी बहुत लेट करता है। देन कम टू द यूक्रोमेटिन, ये जो और थ्रेड वाले पतले पतले से हैं, they are thin in the structure and they are less they take less color, that means they are lightly stained by the stain। and these are just क्या हैं, ये लूज डीएनए समझ लो पड़े हुए हैं। तो these are the loose DNA and these are transcriptionally active and early replicating। रेप्लिकेशन भी जल्दी करते हैं और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब हाँ रेप्लिकेशन होगा तो फिर ये ट्रांसक्रिप्शन भी आराम से कर सकते हैं। तो द क्रोमेटिन फाइबर्स आर, जो ये क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, दीज आर मेड अप ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। ये तीन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि क्रोमेटिन, अगेन आई राइट इट फॉर यू सो दैट you can remember it, that chromatin fibers are made up of, first is DNA, you can remember it easily, another is RNA, and next is the protein। And proteins are, in the case of DNA, these are two types of protein, the name is histone and non-histone। These all things you will get in your book, I think, histone and
non-histone, these two kind of proteins are found in the DNAs. तो ये इनसे मिल करके जो है वो बने होते हैं. And now come to the next thing, or you can say we just move on the next diagram, which is the diagram of chromosome. Yes, this is the diagram of chromosome. So here I have just drawn the diagram. Sorry, here I have just a minute. Here I have just drawn the diagram like this. Like this is the diagram, and you consider it as a chromosome. So whenever we see it on the ultra microscope, then you again find that these thread are always find is with another structure, है ना. इसमें और भी ज़्यादा स्ट्रक्चर, बारीक बारीक से स्ट्रक्चर ये इस तरह से these structures are also found. तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं पतले पतले से बने हुए हैं, these are called वही डीएनए, है ना. जो जीन्स जो भी हैं जो आपकी बुक्स में बने हुए हैं, कह सकते हो डीएनए कहो, जीन्स कहो, वो ये वही चीज़ है. तो एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है. तो दिस इज़ द पेलिकल काइंड ऑफ थिंग, लाइक स्लाइट मेम्ब्रेनस काइंड ऑफ थिंग. एंड दिस इज़ द ऑल जीन्स, जो जिनको आप बोलते हो सब जीन्स है, डीएनए सारा पड़ा हुआ. एंड देयर इज़ अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. दिस वन इज़ नोन एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स जरा सा ये अंदर की तरफ दबा हुआ सा होता है, तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. एंड दिस ब्लैक कलर डॉट्स आर नोन एज काइनेटोकोर, फ्रॉम वेयर you अब now you all know that from where spindle fibers are attached. यहाँ से attached हो जाते हैं spindle fiber during the cell division. And this is the second constriction. This one is called second constriction. This second constriction is very much important, and so many times it is asked in your exams also कि what are these. तो sometimes in a few chromosomes these structures are found. They are non-staining, that means ये कोई color नहीं लेते. एंड दे आर नोन एज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. मीन्स ये एक तो ये हो गया इधर वाला, ये फर्स्ट वाला यहाँ पे है ना, तो ये सेकेंडरी हो गया. एंड इनका काम क्या होता है, दे आर मोस्टली नोन एज द सैटेलाइट डीएनए. तो दिस इज़ द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए. तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ये कांस्टेंट लोकेशन पे हमेशा पाए जाते हैं, एंड सिंपल नोन एज द सैटेलाइट डीएनए. वो क्या फंक्शन है वो आगे डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे. तो बस आपको भी इतना ध्यान रखना है कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस आर ऑल्सो नोन एज द सैटेलाइट डीएनए. नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ अगेन क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पर हम वापस आते हैं. तो सपोज आई हैव ड्रॉन, just a minute, I have drawn such kind of a structure na. You have seen here in the diagram single structure, but I have drawn like this structure. So here you can see that chromosome consists of two identical arms, है ना. ये दो arms हैं, इनसे मिलकर के बना हुआ है. that are called sister chromatids. बहन बहन है दोनों, sister chromatids इनको बोलते हैं. and they are joined by the, there is a constriction. अब आप जानते हो what is the name of it, centromere. So it is you can say joined by the centromere, or you can say there is a constriction that is known as centromere. Sorry, centrosome नहीं, centromere. प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है ये, centromere कहलाता है. एंड दीज आर द काइनेटोकोर. यहाँ पर ऐसे these are the proteinaceous body, these are site of attachment of the spindle fibers. Now so many times I repeated it, तो आपको याद हो गया होगा. ड्यूरिंग द सेल डिवीजन जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं वो यहाँ से अटैच होते हैं. ये जो बने हुए काइनेटोकोर जो मैंने आपको बनाए हुए इनसे अटैच हो जाते हैं. देन ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रोमियर्स, ये जो सेंट्रोमियर्स हैं इनके बेसिस पर ये जो मैंने यहाँ पर बनाए, ऑन द बेसिस ऑफ इट यू कैन ऑल्सो डिवाइड द क्रोमोसोम्स. लाइक अगर एक सेंट्रोमियर पाया जाता है तो यू कॉल देम मोनोसेंट्रिक. मोस्टली मोनोसेंट्रिक ही होते हैं. बट अगर दो हैं तो डाइसेंट्रिक. इफ 3 हैं तो यू कैन से पॉलीसेंट्रिक, और मोर देन 3 हैं तो पॉलीसेंट्रिक कह सकते हो. समटाइम्स देर आर नो सेंट्रोमियर ऑल्सो ऑल टुगेदर, देन यू कॉल देम एसेंट्रिक ऑल्सो. दीज थिंग्स आर नॉट ऑन इन योर सिलेबस इन डिटेल, सो आई एम नॉट गोइंग इन द वेरी मच एक्सप्लेनेशन ऑल इट. बट आपको शॉर्ट में पता हो कि सेंट्रोमियर्स के बेसिस पर भी इसको हम बहुत सारे नेम्स दे सकते हैं. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, this is a very much important question, so you just take it very seriously, and it is very easy also. So on the basis of the presence of the centromere, you can divide the chromosomes on the 4 types. तो यहाँ पर हमने 4 तरह से इनको डिवाइड कर लिया. फर्स्ट वन इज नोन एज द टीलोसेंट्रिक. टीलोसेंट्रिक मीन्स दैट ओनली वन आर्म इज देयर, है ना. केवल ये देखो एक आर्म दिख रही है, दूसरी आर्म तो है ही नहीं है, इसकी गायब है बिल्कुल भी. ये सेंट्रोमियर हो गया, ये आर्म हो गई, दूसरा तो कुछ है नहीं है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, we call them telocentric. That means there is no arm. Then again next one is acrocentric. Acrocentric means with two highly unequal arms. अब highly unequal, एक तो इतनी ज़्यादा बड़ी और एक इतनी ज़्यादा छोटी हो गई, तो you can say that two highly unequal arms. और next one is the submetacentric. Submetacentric means with two slightly unequal arms. थोड़ा सा बस बीच से थोड़ा अलग हो गया, तो slightly unequal arms हो गई. And last one is the metacentric. That means centromere present into the centromere divide the
2 आर्म्स इक्वली, तो मेटासेंट्रिक मीन्स विद 2 इक्वल आर्म्स, तो 2 इक्वल आर्म्स हो गए, एम फॉर मिडिल, एम फॉर मेटासेंट्रिक, तो बीचों बीच में हो गया ये। तो दीज आर द वेरियस काइंड्स ऑफ you can various types of chromosomes on the basis of the presence of the centromere. So this is a very important and very easy question, so you have to learn the diagram also. Now we move to the next thing, that is that I have just drawn for you so that I can make you understand the things very much comfortably. So this is the diagram बच्चों again. तो here very much important thing which I want to describe you so that you can understand the function of nucleus, क्योंकि अभी आपको function तो clear समझ में नहीं आया कि मैं क्या करा रही हूँ आपको, है ना, समझ रहे हैं तो आप थोड़ा सा डिटेल भी लेते चलें साथ में, तो मैंने इसलिए आपको यहाँ पे ड्रॉ किया। तो बच्चे दिस इज़ द सेंट्रल डॉगमा, आई हैव जस्ट रिटन हियर इन द ग्रीन। सेंट्रल डॉगमा इज़ यू कैन से अ वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग विदाउट विच जेनेटिक्स चल ही नहीं सकती है बिल्कुल भी। तो जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी को पढ़ने के लिए यू हैव टू नो अबाउट दिस टर्म एंड व्हाट इज़ दिस। तो देयर इज़ अ डिस्क्रिप्शन विच इज़ गिवन here, and it is called as central dogma. It is given by the Watson, and Crick is the scientist, you know that, who discovered the, or you they give the structure of the DNA. तो वॉटसन एंड क्रिक में से 2 बंदे थे ना, एक वॉटसन एक क्रिक, तो क्रिक ने जो दिया था सेंट्रल डॉगमा, आई हैव रिटन इट हियर, नॉट द वॉटसन, वॉटसन ने नहीं दिया था, पर वही वाले क्रिक हैं ये जिन्होंने ये स्ट्रक्चर दिया है। तो व्हाट हैपेंस हियर स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ रेप्लिकेशन प्रोसेस। रेप्लिकेशन मीन्स दैट DNA फॉर्म्स its own copies, that is called DNA. So that's why I am showing here with the reversible arrows कि DNA से DNA बन रहा है, वापस DNA अपनी कॉपी बना रहा है। And why it is so, because as you all know that during the cell division one cell divides into 2, ठीक है, 2 में डिवाइड हो जाती है। तो इफ़ इट हैज़ some certain genetic material, suppose with the help of diagram I am going to show you, suppose this is a mother cell or it has a nucleus, so and it is going to divide, so when it is going to divide the nucleus is also going to divide ना, तो nucleus भी divide होगा इसका साथ साथ, and when the division completes then this is one cell and this is another cell। तो जो DNA है ये DNA सारा का सारा DNA सारा थोड़ी दे देगी सेल, कुछ अपने पास भी तो रखेगी ना, तो कंप्लीट तो नहीं दे देगी। तो फॉर दैट पर्पस इट हैज़ टू डिवाइड, तो इट हैज़ टू यू कैन से रेप्लिकेट, द DNA कंटेंट हैज़ टू बी रेप्लिकेट सो दैट it makes the same copy and one of that copy can be transferred to the daughter cell। ठीक है ना, सारा तो नहीं दे देगी ना अपना DNA, तो वो पहले अपने जैसी कॉपी बना लेती है, फिर उसका एक हिस्सा सेल को दे देती है, अगली सेल को जो डिवाइड हुई, और बाकी का हिस्सा उसके पास रहता है। तो फर्स्ट थिंग इज नोन एज द रेप्लिकेशन ऑफ DNA, दैट मीन्स इन रेप्लिकेशन DNA मेक्स इट्स ओन कॉपी। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आ गई, गॉट इट, इट इज़ वेरी मच ईजी फॉर यू। And then what happens, then this DNA forms the messenger RNA, and this process is known as transcription, and from messenger RNA the protein is formed, or you can say enzyme is formed, and this process is called translation। So now again I repeat it, that with the different pen I can show you these things, that DNA forms its own copy, this process is called replication, then DNA forms the messenger RNA, that process is called transcription, then messenger RNA forms the proteins in the form of enzymes, it is called translation। मैंने दोनों चीज़ें लिखी हैं, प्रोटीन और एंजाइम, क्योंकि जितने भी एंजाइम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो हैं, यू नो दैट दीज ऑल आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, तो प्रोटीन बने या एंजाइम बने वो एक ही बात होगी। and this whole process is known as central dogma, it is very much important। genetic information इसी तरह डायरेक्शन में फ्लो होती है, तो दिस इज़ द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यू कैन ऑल्सो से। अब ये हमने इसको क्यों पढ़ा, तो अभी इसका यूज़ जो है अभी मैं यहाँ पर आपको समझाने वाली हूँ कि वाई आई टोल्ड यू ऑल दीज थिंग्स। तो नाउ यू सी द अगेन स्ट्रक्चर ऑफ द, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड दिस इज़ द न्यूक्लियस, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द थिंग्स नाउ, अब बिकॉज आप पढ़ चुके हैं न्यूक्लियस क्या होता है। एंड दीज आर द न्यूक्लियर पोर, ये न्यूक्लियर पोर बने हुए हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर आपको सारा कंटेंट आपको पता है। तो व्हाट हैपेंस इन द न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस DNA फॉर्म्स द मैसेंजर RNA, मैसेंजर RNA बन गया DNA में। नाउ दिस मैसेंजर RNA हैज़ टू कम आउट फ्रॉम द कम आउट इन द साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म है, तो मैसेंजर RNA तो बन गया, DNA ने बना दिया, मतलब ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया, बट फॉर ट्रांसलेशन इट हैज़ टू कम आउटसाइड, तो मैसेंजर RNA को बाहर आना पड़ेगा। एंड बाहर किस लिए आना पड़ रहा है मैसेंजर RNA को, क्योंकि we all know that ribosomes are found in the cytoplasm। देखो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से बना रखे हैं, तो ribosomes are found in the cytoplasm, and for the protein synthesis we need cytoplasm as well as we need the messenger RNA also, you all know that। तो there is a messenger RNA
एंड हियर इज़ अ राइबोसोम. नाउ प्रोटीन सिंथेसिस कैन स्टार्ट, क्योंकि मैसेंजर आरएनए और इन राइबोसोम के बिना तो हो नहीं सकती. तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना, दैट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इनटू द न्यूक्लियस एंड देन मैसेंजर आरएनए कम्स आउट इनटू द साइटोप्लाज्म एंड विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इनटू द साइटोप्लाज्म दे मेक द प्रोटीन्स. नाउ दे मेक द प्रोटीन्स. चलो जी, प्रोटीन भी बन गया. अब नाउ व्हाट टू डू. अब दिस प्रोटीन, इसको अंदर भी जानना है क्योंकि अंदर भी इसको बड़े सारे काम होते हैं. तो इट हैज़ टू गो इनसाइड इट. That means it has to go inside the nucleus. So that's why there are the nuclear pores. That means these kinds of things keep on coming inside the cell, and also at times they have to move outside the cell. Basically यही सारा काम चलता रहता है. तो it can control, that means these nuclear pore, just a minute, these nuclear pore, these can control the things which enters inside the nucleus and वाइसी वर्सा, दैट मीन्स आउटसाइड. तो बेसिकली क्या, किनका एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर इन न्यूक्लियर पोर के थ्रू? दो चीज़ों का. वन इज़ प्रोटीन एंड अनदर इज़ द आरएनए, मैसेंजर आरएनए. ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए और इनका आना जाना चलता रहता है. तो दैट्स वाई वी जस्ट गिव यू द लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ द सेंट्रल डॉगमा, कि सेंट्रल डॉगमा क्या होता है. तो सो दैट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द nucleus. But there are some things, some functions are also there which I want to tell you about. Like जैसे आप सबने पढ़ा है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, there is a nucleoplasm ना. We change the diagram I think so that this one is good. So you have just seen in this diagram that there are nucleoplasm, it is filled inside the nucleus. So nucleoplasm is a liquid substance and wherever the liquid substance is present, you know that it provides a shape. जैसे बलून में आप पानी भर लो या हवा भर लो तो उसको शेप प्रोवाइड करता है ना. जैसे स्केल्टन है हमारी बॉडी के अंदर तो हमें शेप प्रोवाइड करता है. तो इन द सेम वे द फ्लूइड विच इज़ फिल्ड इनटू द न्यूक्लियस, इट प्रोवाइड अ स्केल्टन काइंड ऑफ थिंग. तो आप कह सकते हो कि न्यूक्लियर स्केल्टन प्रोवाइड करता है. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द न्यूक्लियस. एंड सेकेंड थिंग, what else it can do, it can help in the formation of वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स. अब न्यूक्लियस से अभी हमने पढ़ लिया पीछे वाले चैप्टर में. तो वेरियस काइंड्स ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन को बनाने में ये हेल्प करता है. फॉर एग्जांपल लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ जो प्रोटीन्स हैं जो भी हमारी बॉडी के अंदर काम आते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए वो हेल्प करता है बनाने के लिए. अब इनके अंदर जो है, एक तो जो भी प्रोटीन्स बनेंगे वो सेल्स के बहुत सारे स्ट्रक्चरल फंक्शन में जो है वो काम आते हैं. तो उनको सबको करने के लिए वो हेल्प करता है. अब जो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस है इटसेल्फ अगर हम बात करें तो इट कंट्रोल्स, देयर आर 3 फंक्शंस बेसिकली. अगर आप रिमाइंड कर सको तो इट इज़ बेटर है कि जो सिंथेसिस है स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस में, मैं आपको बेसिकली 5 फंक्शंस बताना चाह रही हूँ. फर्स्ट इज़ द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन विच वी हैव जस्ट डिस्कस. सेकेंड इज़ द इट कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ एंजाइमेटिक प्रोटीन्स एक्टिविटी, क्योंकि अब प्रोटीन तो बन गया लेकिन देयर आर सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन विच आर perform the enzymatic processes. So it controls the cellular functions. And third one is it controls the synthesis of enzymatic protein. And fourth one is it contains the genetic information. As you all know that various in one generation, from one generation to another generation, it transfers the genetic information, because most of the time you have seen that babies are just very much similar to their parents in their appearance. So how can it be possible that they get something from their parents? And what is this something? These are the genes. तो इनकी वजह से, बिकॉज द ऑफस्प्रिंग गेट्स दीज जीन्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, दैट्स वाई दे लुक वेरी मच सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. सारे अपने पेरेंट्स की जैसे दिखते हैं ना, कुछ अपीयरेंस में मिलता जुलता होता है. तो दिस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है न्यूक्लियस. तो इट कंटेन्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. इट ऑल्सो फॉर्म्स द राइबोसोम्स ऑल्सो. वी हैव स्टडीड इन द न्यूक्लियस राइट नाउ कि राइबोसोम्स ही फॉर्म करते हैं. एंड इन 10th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड दैट it also induces the genetic variation and helps into the organic evolution. Remember, you have studied in the chapter organic evolution where you have studied that slight change in the DNA. Suppose this is a DNA, the slight change in DNA, suppose कहीं कुछ भी छोटा सा भी चेंज हो जाता था तो आपने पढ़ा था कि it give the formation of the new kind of species, है ना. तो various small changes which occurs in the DNA over the period of time, over the period of 500 or 400 generations. After the generations of 4 and 500, it become a complete new species due to the changes of the DNA. तो चेंज इतना कर देता है DNA धीमे धीमे. तो जेनेटिक एवोल्यूशन में तो बहुत बड़ा रोल है इसका, आपको याद रखना है. And I think all these these are the all functions of the cell. And maybe some, I think I have taken all these things out. What else I left, I just have to revise the thing so that yes, we have done all the things
Yes, this is again a diagram I have drawn for you people, but okay. So dear student, this is all for today, and I hope you can understand it well. If there is any problem, then let me know. Thank you.